This call is now being recorded. वर्चुअल बॉक्स में भी चला सकते हैं, दैट्स अ गुड ऑप्शन. वर्चुअल बॉक्स के अलावा यू फाइंड any simulator, yeah, get bash. We have lot of options. अगर करना चाहे तो बहुत सारे options हो सकते हैं. You can have a simulator also, online simulator, where you can learn, where you can execute all these commands. Okay, so all those commands can be executed and in those kind of simulators also, and the options which are given by your colleagues, you can try that also. Okay, वर्चुअल बॉक्स में क्या करना पड़ेगा आपको, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके उसमें लिनक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा. ठीक है, hack the box for simulator. So hack the box can be used. So these are the different options just coming from your side only. You can try those one also. Install Linux. Okay. So better, I'll give you one advice that side by side आपके Windows के side, along the side of Windows you can install the Linux also. Okay, because not about the practicals only. Yes, dual boot. So when you will have a dual boot operating system, then just start working on the Linux only, because it's a open source operating system. Okay, which jiska source code is fully available. You can do some sort of customization also and all that. But main ये है कि ये open source है. Okay, the people who are using people who are using Windows and are not having license copy. So basically, you are using the pirated one. That's not good. That's not the right thing. So you can just use this Linux operating system. और ये आप 2 साल 3 साल आप यूज करेंगे ना, so you will be used to with this particular operating system and you will love it. Okay, and you will get an experience. You will get an experience of this operating system also, because you know the Windows. आपको Windows के बारे में सारी चीजें पता है, Windows में कौन से ऑप्शंस कहाँ वगैरह. So जब ये यूज करेंगे तो इसके भी आप लोग थोड़ा सा एक्सपर्टीज आ जाएंगे. So you'll be having an expertise of the Linux operating system when you will pass out from the college. Okay, so आपके पास में Linux भी हो जाएगा और Windows भी हो जाएगा. Because as a computer student, you must know what is how to operate the Linux operating system and what are the different tools available in the Linux operating system. What you can do, where's the option. Okay, and you will be used to with the commands. Okay, apart from the command which we are learning, so apart from these commands, we have number of commands also. So those commands can be used in our daily usage. Okay, so this is my suggestion for you people. You can install the Linux operating system in your or in your laptop or desktop, whatever you have. So when you will come to college, you can get the bootable disk. Okay, so अपना pen drive लेके आना, you can make it as a bootable. Okay, the updated one, you can install the Linux Mint or Ubuntu, to whichever is required. You can install the Linux Mint, which is quite similar with the Windows operating system. It has a start button. Start के अंदर जो accessories वगैरह जो programs दिखते हैं, so it is like that only. So you can install the Linux Mint. I'm also using the same. As you can see, it is same as your Windows. So apart from this, चलो चलते हैं. कहाँ थे हम लोग? I hope you would have completed the remaining command. अगर आप लोग ने किया हुआ तो बहुत अच्छी बात है. Let me find out any online simulator for you people if you can do. प्रॉब्लम हो गया. Linux simulator. ऑनलाइन लिनक्स टर्मिनल. कोई भी एक वेबसाइट पे जाके आप सारी कमांड्स ट्राई कर सकते हो. साइन इन. ये भाई साहब थोड़े से पीरियड वाले दिख रहे हैं. इट्स अ फॉल्स. सब पैसे मांग रहे हैं. WSL is a good interface. Is it a website or
ठीक है, हमें शायद कुछ मिल जाए जिसके लिए। ओके, एक बार गो थ्रू करते हैं हमारे लिनक्स के जो प्रैक्टिकल्स है। सो we were working on the first experiment, that is the basic Linux commands, okay, mkdir, chdir, cat. So you can find all these command, cat, ls, ch down. This is for changing the ownership of the file. Chown. This is for changing the ownership of the file. Okay, whichever file you have, okay, you can change the ownership also. I think you can change, you can just first of all you can find the owner also. तो properties में जाने के बाद में owner भी कहीं ना कहीं आता है कि the particular person is the owner. Access modified volume type size permission कहाँ मिलेंगी पता नहीं, लेकिन उसकी भी कुछ कमांड है, you can find it also. Okay, who is the owner of the particular file or directory. Changing group ps command, जैसे ये आपके प्रोसेस स्टेट के लिए, आपके प्रोसेस के लिए बेसिकली पीएस कमांड है। उसके अलावा फिर सिस्टम कॉल के बारे में एक्चुअली ये पहले अलग अलग प्रैक्टिकल्स थे, लेकिन बाद में इसको अलग अलग किया गया एक्चुअली, और एक साथ में कंबाइन किया गया। सो ये आपका जो एक प्रैक्टिकल ये है, ओके, और ये एक आपका अलग प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग साइड में रखते हैं बिकॉज हम लोग ने आज ही सिस्टम कॉल किए हैं। सो दीज आर दी सिस्टम कॉल विच आर रिलेटेड टू दी फाइल, डायरेक्टरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। आपने देखा फाइल मैनेजमेंट यानी कि सॉरी हाँ, फाइल मैनिपुलेशन के सिस्टम कॉल भी थे आज हम लोग ने जो देखे क्लास के अंदर, थियरी के अंदर। देन फाइल और डायरेक्टरी आपका एक ही में आ जाता है, एंड देन प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसके सिस्टम कॉल यहाँ पर अवेलेबल है, ओपन, रीड, राइट, क्लोज, गेट पीआईडी, सेट पीआईडी, गेट यूआईडी, गेट जीआईडी। सो ये प्रोसेस की आईडीज होती है। देन उसके बाद में सॉर्ट, ग्रैब, ये इतना इतना हम लोग नहीं करने वाले। हम लोग जो बेसिक बेसिक है जैसे कि ओपन है, रीड है, राइट है, गेट पीआईडी है, तो ये सारे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्चुअली हम लोग को किसी प्रोसेस को टारगेट करना होता है इसके अंदर। किसी प्रोसेस को टारगेट करके यू कैन फाइंड सॉरी यू कैन यूज दिस सिस्टम को। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ना बाद में देखते हैं, ठीक है। इसको पहले तो स्टडी करना था, हम लोग को स्टडी करके इसको यूज करना था। तो आज तो हमारी स्टडी हुई है इसके बारे में, तो इसको हम लोग यूज भी करेंगे। बट एक्चुअली आई एम नॉट रेडी विद दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा बिकॉज आप लोग तो नहीं कर सकते, अभी यहाँ पर मुझे ही करना है और आपको खाली बताना है, देन बाद में आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो ये नेक्स्ट वाला टारगेट करते हैं, देन आई विल शो यू द कोडिंग्स डायरेक्टली बिकॉज एक एक करके परफॉर्म करना बहुत टाइम लग जाएगा। सो हम लोग डायरेक्टली सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट्स पे हम लोग जंप करते हैं। ये वाला जो है इसके बारे में जस्ट स्टडी हम लोग इसको मेंशन कराएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर सारी लिनक्स कमांड का स्टडी हुई और उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए, उसको टेस्टिंग किए, एंड देन बाद में सारे सिस्टम कॉल को, जो सिस्टम कॉल यहाँ पर मेंशन किया फॉर फाइल, डायरेक्टरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। तो आपको बताया 5 कैटेगरीज है, 5 कैटेगरीज है, तो 5 कैटेगरी में ये 2 कैटेगरी के ही मेंशन किए। सो वी कैन जस्ट पुट लाइक के सबकी स्टडी किए करके, ठीक है। सो वी हैव स्टडीड अबाउट दी सिस्टम कॉल फॉर ऑल दी कैटेगरीज, ओके। बट यहाँ पर 2 कैटेगरी मेंशनड है। So right now ज़्यादा टेंशन मत लो उसके बारे में। we'll just go through the second experiment, okay. I'm ready with the code because last 2-3 साल से हम लोग कर रहे हैं, तो इसको हम लोग ट्राई करेंगे डायरेक्टली मैं आपको शो करने के लिए। So this is regarding the shell script, okay. Most of you have already written their own shell script, okay. Basically shell script is the combination of multiple commands, okay. A command, for example ls command. So ls command, with the help of ls command you can list out all the, with the ls command you can list out all the files and directories, okay. With the help of cat command, that is cat command, you can read all the content of the file, okay. With the help of mkdir, that is make directories, you can create the directory. So these are the different commands and they are having their own task, okay. So you can combine few of the command together and you can make a shell script also, okay. Its extension is .sh, okay. And for any task, for completion of any task, task number 1, task number 2, task number 3, so you can combine all 3 tasks and you can make a shell script, okay.
So basically shell script is used for that only. Okay, so you can just find out, यहाँ पर हम लोग इसको स्टडी करते हैं how to write the shell script. Okay, for small tasks you can write the shell script. Okay, and after when we understood all the aspect of the shell script, then we can do the following task. You can see we have to display, we have to write a shell script, and uh, we have to do this task whatever are mentioned over here. So this is the first is, we have to display the OS version, release number, kernel version. So we have to get the information of the system. Okay, the information maintenance category. Okay, so we have to mention over there. We have to display top 10 processes in the descending order. Okay, so right now you can see my Google Chrome is executing right now. My WPS office, that is WPS, is also open. This my Explorer is also open, that is my file manager is also open. Okay, so right now 1 2 3, so these three applications are still running and executing. So I think that 3 processes are still running in my system. Okay, so it will list out all the processes which are running right now in my system. तो उसको भी कैसे करना है, we have to display top 10 processes in the descending order. अब वो लिखने के लिए सबसे पहले प्रोसेस को अगर लिस्ट आउट करना है, अगर ये जो PS कमांड आपको बताया था ना मैंने, तो जस्ट टाइप PS, एंटर करो, it will show the processes which are available right now and their tally type. Okay, उनके टर्मिनल्स भी बताता है आपको और उनके प्रोसेस आईडी भी बताता है. यू कैन सी, अगर छोटा दिख रहा होगा तो सॉरी फॉर दैट, बट थोड़ा इसको मैं जूम, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ जैसा लास्ट टाइम किए थे. 1617. ठीक है, okay. Now you can see with the help of PS command you will be able to find all the processes which are executing right now in the system in Linux operating system. And now this command will be different for Windows. Okay, so we are not talking about the Windows, but we are talking about the Linux one. So in Linux, with the help of PS command, it will show all the processes which are running right now in the system. So PS command वो हम लोग को show करते हैं. So क्या करना है हम लोग को, we have to display top 10 processes in the descending order. अब descending में TTY tally type. Okay, आपको पता होगा TTY 0, TTY 1. एक सेकंड पहले आप हमने क्या पूछा है मुझे देखने दो, because मैंने वो देख नहीं पाया था. TTY stands for tally type होता है basically, and we have actually terminals. We have क्या बोलेंगे उसको, उसको एग्जैक्ट वर्ड मेरे पास में याद नहीं आ रहा, लेकिन आप अगर आप लोग प्रेस करेंगे, आप लोग अगर मुझे देख पा रहे तो कंट्रोल ऑल्ट F1 अगर आप प्रेस करेंगे तो यू आर ऑन द ऑन स्क्रीन. देखो कंट्रोल ऑल्ट F1, तो आपको नजर आ रही है स्क्रीन, नजर नहीं आई, बहुत स्लो चल रहे हैं. मैंने स्क्रीन प्रेजेंट किया हो ना, तो फिर क्यों दिख नहीं रहा है आप लोग को मेरी स्क्रीन? आप लोग को स्क्रीन ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रही है जहां पर ऊपर लिखा हुआ है TTY करके लिख के आ रहा है? कैन यू सी दैट स्क्रीन? नो ना, फ्रीज हो गए ना. हाँ, ये यहाँ पर क्योंकि मेरे मोबाइल में भी चालू है तो मोबाइल में भी ऐसे ही दिख रहा है. एक काम करता हूँ, मैं स्टॉप करता हूँ और वापस से स्क्रीन को प्रेजेंट करता हूँ. आई होप अभी आपको नजर आ रही होगी. हाँ, अब दिख रही है. ठीक है, बिकॉज मैंने साथ में लॉगिन किया हूँ मोबाइल से भी, सो आई कैन सी व्हाट यू पीपल कैन सी. ओके, सो अभी वो टॉकिंग अबाउट द TTY. ठीक है, TTY में टेली टाइप. ओके, सो वी हैव टोटल 7, और हाँ वी हैव टोटल 7 और 9 टर्मिनल्स होते हैं हमारे पास में. सो व्हेन यू प्रेस कंट्रोल ऑल्ट F1, सो इट विल गोज टू TTY. ओके, आई थिंक ये स्क्रीन आपको शो नहीं करेगा बिकॉज ये मैं दूसरे टर्मिनल पे चला गया हूँ. ठीक है, ऊपर लिख के आ रहा है पूरी स्क्रीन ब्लैंक है, पूरी स्क्रीन ब्लैंक है. अगर आपको देखना है तो मैं आपको एक सेकेंड ना, अब आप लोग देख पाएंगे. यू कैन सी द ब्लैंक स्क्रीन और कुछ लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पर TTY करके कुछ तो लिख के आता है. ठीक है, जब आप मैं कंट्रोल ऑल्ट F2 प्रेस करूंगा तो ऊपर मेरा सेकंड टर्मिनल आ जाएगा, दैट इज TTY2.
अगर मैं कंट्रोल ऑल्ट F3 करता हूँ सो इट विल कम लाइक TTY3, ओके। सो एंड सो ऑन, ऐसा देखो मेरा पूरा चेंज होता जाएगा, कंट्रोल ऑल्ट F1 F2 F3 F4 F5। अब F5 में प्रेस नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज उसके लिए 2 हाथ चाहिए, तो ऐसे वो कहाँ तक जाता है मैं आपको बता दूंगा। तो मल्टीपल स्क्रीन होती है आपके 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 लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सर अंदर। स्क्रीन नहीं दिख रही, आपने जो पीडीएफ प्रेजेंट किया ना सिर्फ वही दिख रहा है। हाँ हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली हम लोग जो स्क्रीन पर है ना अभी, जो आप लोग को स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हो, इट इज प्रेजेंट ऑन TTY7। इट इज प्रेजेंट ऑन TTY7। तो ये TTY7 पर होने की वजह से आप लोग, हाँ, नो नो नो, कैमरा नहीं, मैं आप लोगों को दिखाया भी, हालांकि ये हैंग हो रहा है एकदम। इसके लिए बोलता हूँ कि फिजिकल टीचिंग और फिजिकल लर्निंग का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ लेकिन वो बता भी नहीं सकता, बस वो स्क्रीन आ नहीं रही है। बिकॉज हम लोग जो स्क्रीन पर है, द स्क्रीन विच यू कैन सी राइट नाउ इज ऑन TTY7, दैट इज ऑन टेलीटाइप, दैट इज ऑन टर्मिनल 7th टर्मिनल पे, हमारे हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अराउंड कुछ, देखो, TTY1 TTY2 TTY3 आपको आपको नहीं दिख रही है लेकिन मैं बता रहा हूँ कितनी होती है। TTY4 TTY5 TTY6 TTY7 पर ये स्क्रीन है जो आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। और TTY8 नहीं है, TTY9 नहीं है, तो टोटल 7 टर्मिनल्स होते हैं हमारे हमारे किसमें, हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में टोटल 7 है। और 7th पर हमारा ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, मतलब ये हमारा जो जो स्क्रीन है जिस पर आप लोग अभी देख रहे हो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये है, ठीक है। और TTY1 पर कुछ नहीं है, 2 पर 3 पर 4 पर 5 पर 6 पर कुछ भी नहीं है, इसके लिए खाली ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, ऊपर खाली लिख के आ रहा है TTY1, जस्ट कमांड लाइन के थ्रू जस्ट आ रहे हैं, ठीक है। सो आप लोग जब सर्च करेंगे थोड़ा बहुत, और अपने लिनक्स में अगर आप लोग चेक करेंगे कंट्रोल ऑल्ट F1 करेंगे तो आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी, ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट स्क्रीन, वी हैव डिफरेंट टर्मिनल्स इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो हम लोग बात क्या कर रहे थे, सो वी हैव टू डिस्प्ले टॉप 10 प्रोसेसेस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। पर एक बार हाउ टू एग्जिट, यू कैन कम बैक टू द कंट्रोल ऑल्ट F7, ठीक है। आपने प्रेस किया होगा कंट्रोल ऑल्ट F1 तो यू यू विल एंटर इनटू द टर्मिनल नंबर 1, कंट्रोल ऑल्ट F2 तो टर्मिनल नंबर 2। तो ऐसे ही F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 आपकी खुद की स्क्रीन, ये मतलब आपका GUI वर्जन, ठीक है। बाकी सब कमांड लाइन वर्जन है, ये आपका GUI वर्जन है, ठीक है। सो टोटल 7 टर्मिनल्स आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मिलते हैं, ओके। मेरा वीडियो ऑन नहीं है क्या? पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ अजीब ही हो रहा है। हम्म, चलो ठीक है। एंड देन उसके बाद में फिर डिस्प्ले प्रोसेसेस विद हाईएस्ट मेमोरी यूजेज। तो अगर मतलब के लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इफ 2 और 3 प्रोसेसेस आर रनिंग, देन उनका मेमोरी यूजेज क्या है वो भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। We have a command. सो उनके मेमोरी यूसेज को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव अ कमांड, ठीक है, एंड देन वी कैन सॉर्ट इट आउट आल्सो, ठीक है। उसके बाद में कौन करंटली किसने लॉगिन किया है वो भी आप लोग पता कर सकते हैं यूजिंग कमांड वी हैव, ओके। तो ये सारे टास्क को हम लोग क्या करेंगे, एक शेल स्क्रिप्ट में डाल देंगे और उस शेल स्क्रिप्ट को हम लोग सेव करेंगे .sh फाइल से, ठीक है। सो इट विल बी योर शेल स्क्रिप्ट, ओके। लास्ट में एक और काम है, we have to display current shell, home directory, operating system का type, then current path setting, current working directory, okay। So all these things you can do, ये सारे छोटे छोटे टास्क you can combine in one file and you can make it as a shell script, okay। तो ये एक शेल स्क्रिप्ट हम लोग को बनाना है। तो डायरेक्टली मैं आप लोग को बताता हूँ बिकॉज हमारे पास उतना टाइम नहीं है एक एक चीज करने के लिए, तो मैं डायरेक्टली आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आई हैव दैट,
लास्ट ईयर जो किए थे. सो आई विल जस्ट टेक अ this is current shell. Control C and let me open the Genie. Genie में ओपन कर लेता हूँ मैं, या फिर एक सबलाइन ले लेता हूँ. चलो हाँ. ओके, सबसे पहले तो इसको मुझे वापस बड़ा करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग को फिर नहीं दिखेगा. एडिट एडिट, कहाँ से बड़ा होगा? अब ये टूल, प्रोजेक्ट प्रेफरेंसेस, ब्राउज पैकेज सेटिंग, ऐसे बड़ा कर लो ना. ओके हाँ, चलो हो गया बड़ा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यस व्यू. ओके, सबसे पहला काम हम लोग को करना है, अगर कोई भी एक आपकी शेल स्क्रिप्ट फाइल है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक शेल स्क्रिप्ट ले तो उसके अंदर आप इको इको करेंगे तो वही चीज़ आप कर सकते हो. फॉर एग्जांपल ये मैं करता हूँ इको, जैसे कि इसके अंदर मैं किया, और जो भी आपको स्टेटमेंट वगैरह डिस्प्ले करना है तो यू कैन मेक यूज ऑफ द इको कमांड. तो इको डबल इसके अंदर हेलो. ओके, इसको सेव करो. आप सेव करोगे टेस्ट डॉट एस एच. ओके, शेल स्क्रिप्ट की जो फाइल होती है आपकी शेल स्क्रिप्टिंग की, उसका जो एक्सटेंशन होता है इट इज ऑलवेज डॉट एस एच. ओके, यू कैन सी टेस्ट डॉट एस एच. ओके, वो होने के बाद में इसको मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ सेव. डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव किया, डेस्कटॉप पे सेव हो गई है. ओके, अब इसको आपको रन कैसे करना है, हाउ यू कैन रन इट. ओके, आप इसको रन कैसे कर सकते हो? So simple, go to the desktop, just list out whether that file is present or not. Yes, this is present. You can see the test.sh is present over here. Okay, how to run, how to execute that file? sh space file name test.sh. ओके, तो जैसे कि आप लोग अपना सी प्रोग्राम रन करते हैं वैसा ये भी है. तो द थिंग्स आर सिंपल. इसके लिए मैं एकदम फास्ट में जा रहा हूँ बिकॉज टाइम ज़्यादा नहीं है, फिर अचानक टाइम हो जाएगा और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे. सो अगर कोई भी स्क्रिप्ट फाइल को शेल स्क्रिप्ट को रन करना होता है तो सिंपली यू कैन एग्जीक्यूट दैम इन दिस वे, sh स्पेस फाइल नेम डॉट sh. ओके, सो यस यस, बराबर ऐसा भी कर सकते हैं. ठीक है, so whatever the content is there so it will be displayed to you. You can see हमने अंदर hello लिखा था तो hello अंदर हम लोग को आया. कहाँ पर लिखा था हम लोग ने? you can see यहाँ पर हम लोग ने लिखा तो hello लिख के आया. ठीक है, hello world save हेलो वर्ल्ड लिखकर आएगा. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी बेसिक वे. आप में से काफी लोगों को ये चीज पता होगी कि शेल स्क्रिप्ट फाइल को कैसे रन करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, सब कुछ पता होगा. बट लेकिन जिनको नहीं पता था उनके लिए बता दिया. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल शेल स्क्रिप्ट फाइल. ओके, और उसके बाद में फिर आप उसके अंदर कुछ और काम भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल PS कमांड हम लोग अभी आगे यूज करने वाले हैं. तो चलो मैं आपको इसी में बता देता हूँ. ठीक है, हम लोग के लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है? वी हैव टू डिस्प्ले द ओएस वर्जन. एक्चुअली पहला काम यहाँ पर हम लोगों ने ये किए, टॉप 10 प्रोसेसेस हम लोगों ने लिखे हैं. सो ये पहला काम पहले हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं. वी हैव डिस्प्ले टॉप 10 प्रोसेसेस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने टॉप 10 प्रोसेसेस पहले कुछ एक जैसे आपको आपका स्टेटमेंट होता है ना, प्रिंट स्टेटमेंट होता है जस्ट कुछ प्रिंट करने के लिए. सो दैट इको वी हैव यूज दिस इको for that reason only. Eco top 10 processes and descending order. So the same thing will be displayed. The same thing will be displayed over here. So ठीक है, so ये आपका पहला जो काम था. हालांकि पहला काम कुछ और था लेकिन हम लोग अभी इसको कर रहे हैं जस्ट आप लोग को एक बार बताने के लिए. ठीक है, देन बाद में इसको हम लोग और कंबाइन कर सकते हैं. ठीक है, सो टॉप 10 प्रोसेस के लिए हम लोग आ गए यहाँ पर और वी हैव यूज द PS कमांड. ठीक है, PS कमांड किसके लिए यूज करते हैं? बेसिकली टू लिस्ट आउट ऑल दी प्रोसेसेस. ओके, तो यहाँ पर मैं अपने इसमें जाता हूँ और PS लिखता हूँ. ठीक है, जस्ट मैंने लिखा PS, सेव किया. सेव करने के बाद में अब गया मैं रन करने के लिए. ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है, आउटपुट चेंज हुआ. ठीक है, अच्छा क्या क्या एग्जीक्यूट हुआ वो एक बार जरा ध्यान से देखना. ठीक है, सबसे पहले मैंने इको किया, इको हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो गया. राइट, उसके बाद में फिर आपका
मैंने क्या किया, ई को नंबर 1 टॉप 10 प्रोसेसेस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, जस्ट मैंने कैसी स्टेटमेंट प्रिंट किया, तो ये स्टेटमेंट एज इट इज यहाँ पर प्रिंट हो गया, ये भी देखा आप लोगों ने। उसके बाद में मैंने कमांड डाला ps, आई टोल्ड यू दैट ps कमांड इज यूज्ड टू लिस्ट आउट ऑल द प्रोसेसेस व्हिच आर एग्जीक्यूटिंग राइट नाउ इन आवर सिस्टम। सो यहाँ पर उसने सारे जितने प्रोसेस थे, तो प्रोसेस, अच्छा ये कौन से टर्मिनल में रन हो रहा है, ये टर्मिनल 0 में TTY PTS 0 करके उसका कुछ नाम है, यहाँ पर रन हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनका टाइमिंग वगैरह, उनका कमांड वगैरह कुछ तो दिया है इसमें, ठीक है। वी डोंट केयर अबाउट इट, बट वी केयर अबाउट द PID, दैट इज प्रोसेस ID. Remember your process ID is very important because each and every process will be identified by the process ID only. So PID is important. You can see यहाँ पर इसका process ID है, इसका भी है, इसका भी है, ठीक है। So these 3 process ID are there. So you can just find out any process with the help of the process ID, ठीक है। अब भाई सब हम लोग को जो बोला गया है वो बोला है कि टॉप 10 प्रोसेसेस लाना है आपको इन, अच्छा लेकिन मेरे सिस्टम में तो अभी खाली 3 ही प्रोसेस चल रहे हैं, तो वो 3 का ही मुझे बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है कि टॉप 10 प्रोसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है भाई सब ने। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए जो लास्ट ईयर हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम किए थे वो ये था, ठीक है। सो -a, ये बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही है। चलो इसको हम लोग पहले ट्राई करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके बता रहा हूँ। -a, ठीक है, दिस इज वन ऑप्शन, ओके। if you want to know more about the ps command, then you can go to the terminal and type man, okay. Man command is the manual command, the manual entries are there for each and every command. If you want to know more about any command, then you can make use of the man command. So man space ps, okay. तो मैंने ये टाइप करूंगा, so I will come to know the whole information about the ps command, ठीक है। So ps name command है report a snapshot of the current processes, okay. ps displays information about a selection वगैरह वगैरह, each and everything blah blah blah, आपको बहुत सारी information वो देंगे, ठीक है। Q for quit, ठीक है, तो वो सारी information आपको देगा। उसके अंदर के जो options है वो भी आप लोग को पता चलेंगे, ठीक है। सो -a ऑप्शन है जिससे सारी इंफॉर्मेशन आती है। इसको मैं देखो सेव करता हूँ और रन करता हूँ, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, इसको मैं क्लोज ही कर देता हूँ फिलहाल अभी। हाँ, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद में इसने मुझे सारे ऑल दी प्रोसेसेस एक्चुअली -a ऑप्शन, माइनस नहीं बोलना चाहिए इसको, माइनस इज ऑलवेज पुट बिफोर एनी पैरामीटर, ठीक है। तो कुछ भी ऑप्शन और पैरामीटर देने के पहले हम लोग उसकी जगह एक हाइफन लगाते हैं। तो उसको यूजुअली हम लोग बोलने चालने में हम लोग उसको माइनस बोलते हैं, कभी हाइफन बोलते हैं, ठीक है। ओके, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, अगेन वन एग्जांपल। तो you have ls command. तो ls command is used to list out all the files and folder in your directory right now, ठीक है। बट ls -1 ऑप्शन अगर आप देंगे तो आपको क्या करेगा, वो एक कॉलम में आपको सारे के सारे लिस्ट आउट करके देगा, ठीक है। अगर आप ls -a देंगे तो आपको जो हिडन फाइल है और जो दूसरी फाइल है वो भी आपको करके देगा। ls -s करके कोई ऑप्शन है तो वो भी आपको देगा। तो ऐसे बहुत सारे ls के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। So you can just see that what are the different options which are available for ls command. So in the same way for ps command also we have number of options, okay. We have number of options, so you can make use of those options and you can do the needful whatever task you have been allotted, okay. So ये भाई साहब ने पूरे लिस्ट आउट किया है। अब -a करने पर उसने बहुत सारे कमांड को लिस्ट आउट किया है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग वापस आते हैं। -a के साथ में ये जो ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेटर कोई बताएगा मुझे कौन सा ऑपरेटर होता है? ऐसा वाला ऑपरेटर, एकदम वर्टिकल लाइन और नो, इट्स अ पाइपलाइन ऑपरेटर। आई थिंक आप लोगों ने किया होगा फाइल मैनेजमेंट में वगैरह में किया होगा। इट्स अ पाइपलाइन ऑपरेटर व्हेन यू वांट टू कंबाइन मल्टीपल टास्क for the same command, then you just pipeline। अच्छा, पाइपलाइन किसके लिए यूज करते हैं? बेसिकली जस्ट कॉमन सेंस। पाइपलाइन, यहाँ कुछ आपका वाटर है, यहाँ पर वाटर है, दोनों वाटर को मतलब 2 सोर्सेस है वाटर के, दोनों को कंबाइन करने के लिए आप पाइपलाइन का यूज करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर आपका -a ऑप्शन, उसको हम लोग कंबाइन कर रहे हैं सॉर्टिंग से। नो वी कैन नॉट यूज,
दैट इज द डिफरेंट ऑपरेटर। एम% जो आपका है एंड ऑपरेटर, दैट इज एंड ऑपरेटर। यहाँ पर आपका जो पाइपलाइन ऑपरेटर, ये मल्टीपल चीजों को साथ में कंबाइन करने के लिए हो रहे हैं कि भाई देखो पीएस, देखो पहले आपका पीएस को इंटरप्रेट करेगा तो पीएस मतलब ओके प्रोसेस को लिस्ट आउट करना है, सॉरी। सो माइनस ए ऑप्शन देगा तो वो ऑल दी प्रोसेसेस, वो सारे प्रोसेस को शो करेगा। फिर पाइपलाइन करके सॉर्ट -R ऑप्शन देंगे तो वो सॉर्ट करेगा, ठीक है, सॉर्ट करेगा। उसके बाद में फिर आप फिर पाइपलाइन करके हेड किए हम लोगों ने इसको, तब हेड -N10 तो वो क्या करेगा उसको 10 प्रोसेसेस तक रेस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका जो है ये आपको, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज दिस इज सेम वन। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं। एक्चुअली ये ना नीचे जा रहा है। ओके, sh test.sh, ओके। तो अभी देखो कितने आए हैं। प्रोसेस आईडी ये सारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ही दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हो सकता है उसने किया हो सेंडिंग तो अपनों को दिखा रहा है बहरहाल। तो इतने उसने प्रोसेस आईडी के साथ में प्रोसेस शो किया है, उनके टाइमिंग वगैरह, उनके CMD, उनके कमांड कहाँ से उनका ओरिजिन है, तो वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन उसने ला के अपने को दिया है, ठीक है। सो बेसिकली पीएस कमांड के हम लोगों ने टॉप 10 प्रोसेस। अच्छा देखो आप लोग को ये सब करवाने का पर्पस क्या है। अभी इससे क्या हुआ हम लोग ने ना, देखो एक सिंपल टास्क था हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। वी हैव जस्ट प्रिंटफ वाला जैसे स्टेटमेंट है, ओके। सो ये एक सिंपल टास्क था हेलो वर्ल्ड का। सर 9 क्यों बता रहे हैं, आई थिंक इसको थोड़ा हम लोग चेंज करेंगे तो बताएगा। देखो मैं एक काम करता हूँ, इसको 11 करता हूँ, ठीक है। मुझे भी शायद लास्ट टाइम ये सेम इशू आया था। अब जरा बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो अब आया 10 बराबर। देखो मुझे याद आया लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था कुछ। सो उनका इंडेक्सिंग वगैरह का हो सकता है इशू, बिकॉज इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। तो कुछ पैरामीटर में इशू है, पैरामीटर देने में प्रॉब्लम है। सो अगर मैंने देखो 11 दिया हूँ तो अब मुझे 10 प्रोसेस दिखा रहे हैं, बट उस नंबर से तो हमारा लेना देना है नहीं। हमें स्टिल पता होना चाहिए, एक बार जरा क्वेरी कर लेंगे, ठीक है। सो सो ये एक टास्क हुआ आपका। जस्ट जस्ट आपने इसको एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज एक डिस्प्ले किया, ये आपका एक टास्क हुआ। और बाद में फिर आपने नंबर ऑफ टॉप 10 प्रोसेसेस आपने डिस्प्ले किया, आपका सेकंड टास्क हुआ। ये दो टास्क को आपने कंबाइन कर दिया और इसका आपने एक शेल स्क्रिप्ट बना दी, ठीक है। सो ये काम हमारा हो गया। चलो आते हैं दूसरे काम की तरफ, ठीक है। दूसरे काम के अंदर एक और यूज किया हम लोगों ने PS-ऑक्स। देखते हैं इससे 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 क्या होता है। सो वी कैन टेस्ट, हम लोग एक टेस्ट ये भी कर सकते हैं। चलो मैं कॉपी कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। बहुत कुछ दिखा रहा है भाई साहब। हाँ ये आपको मेमोरी दिखाएगा, हर प्रोसेस कितना मेमोरी यूज कर रहा है तो वो दिखाएगा। आई थिंक सेकंड हमारा काम है डिस्प्ले प्रोसेसेस हाईएस्ट मेमोरी, डिस्प्ले प्रोसेसेस विद हाईएस्ट मेमोरी यूसेज, यानी कि जो प्रोसेस आप लोग ने अभी दिखाया तो वो प्रोसेस आपके कितनी मेमोरी और मतलब यूज कर रहे हैं, उसमें हाईएस्ट वाला कौन सा है। तो वो डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों ने ये वाली कमांड लिखी है। सो अगेन वी हैव टू डिस्प्ले नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ओके। तो ये हो गया आपके प्रोसेसेस। -ऑक्स से ये आपको मेमोरी यूसेज दिखाएगा। -ऑक्स ऑप्शन इज यूज फॉर शोइंग द मेमोरी। और हेड -N 10 दिया, ये आपको टॉप 10 प्रोसेस का ही मेमोरी यूसेज अगर बताएंगे, ठीक है। जैसा हम लोगों ने यहाँ यूज किया, तो इंस्टेड ऑफ 10 यू कैन यूज 11, ठीक है। वापस से रन करते हैं इसको, ठीक है। अब आपको ये 10 प्रोसेसेस का मेमोरी यूसेज दिखा रहा है। यू कैन सी यूजर, प्रोसेस का आईडी, देन उसका परसेंटेज CPU, परसेंटेज ऑफ मेमोरी, VSZ, ये बहुत सारी मतलब होते हैं, बहुत सारे मतलब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ये पैरामीटर हम लोग को भी नहीं आइडिया, ये खुद सेट करता है।
तो बहरहाल ये सारी इसकी यूजेज होती है, यानी कि आपके मेमोरी यूजेज ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये एक काम था, एक अलग काम था, इसको हम लोगों ने कंबाइन कर दिया हमारी शेल स्क्रिप्ट में। तो अब टोटल कितने काम हो गए? 3 काम हम लोगों ने एक फाइल में कर लिए। तो इंस्टीड ऑफ डूइंग आई नो इंडिविजुअल टास्क के सेपरेटली, so we can combine all the tasks in one file and we can make it as a shell script also, ठीक है। एक और काम करते हैं इसके अंदर, और क्या क्या है विद हाईएस्ट मेमोरी यूसेज, और भी इसके अंदर है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। करंट लॉगिन, ठीक है, हु इज द करंट लॉगिन? तो यू हैव वन कमांड, ओके, यू हैव वन कमांड, जस्ट लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग। हु इज द कमांड? एक्चुअली हम लोग ने कमांड सारी की नहीं ना, इसके लिए हम लोग को एक एक कमांड अलग से भी पढ़ना पड़ रहा है। सो हु इज द कमांड फ्रॉम विच यू विल कम टू नो हु आर यू, ठीक है। तो भाई मैं तो मुख्तार हूँ एंड आई एम ऑन TTY7। आई टोल्ड यू दैट कि वी हैव टोटल 7 टर्मिनल्स, 5 to 7। मैं आप लोग को नजर आ रहा हूँ? जरा मुझे रिप्लाई करो, क्योंकि मुझे यहाँ तो कुछ भी दिख नहीं रहा है। मैं विजिबल हूँ, मैं कुछ यहाँ पर गेस्चर नो दे सर। रहा हूँ आप लोग को? नहीं ना, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो ठीक है, बात नहीं। सो आई टोल्ड यू दैट वी हैव टोटल 7 टर्मिनल्स एंड आउट ऑफ दो 7 टर्मिनल्स राइट नाउ माय स्क्रीन जो आप लोग देख पा रहे हैं, वो स्क्रीन मेरी TTY7 पर है, ठीक है। इसके लिए मुझे दिखाया उसमें TTY7 एंड मुख्तार इज द यूजर नेम, जो कि इसके लिए बराबर यूजर नेम बता रहा है। और आज की तारीख है 10th of Feb एंड देन टाइमिंग है 15 to, जो मैंने उस टाइम पे मतलब लॉग इन किया था, ठीक है। बिकॉज मैंने आपको बोला ना मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हुआ है, तो 52 यानी कि अराउंड कुछ 3:02 पर रीस्टार्ट हुआ था, तो सिस्टम का बता रहा है। सो हु कमांड विल टेल मी कि भाई हु आर यू, ओके। सो ये कमांड को अगर मुझे अपने शेल स्क्रिप्ट में यूज करना है, तो आई कैन मेक यूज ऑफ द शेल स्क्रिप्ट, ठीक है। चलो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। सो दिस इज माई थर्ड टास्क, ओके, थर्ड नहीं बोलना चाहिए। चलो सेकेंड टास्क। सेकेंड टास्क ये था हमारा टॉप 10 प्रोसेसेस विथ मेमोरी यूसेज। वी आर नॉट डूइंग एग्जैक्टली व्हाट आवर एक्सपेरिमेंट इज सेइंग, बट मतलब थोड़ा बहुत तो हमारा मैच कर रहा है, थोड़ा बहुत के 80% मैच कर रहा है, बट जरूरी नहीं कि जैसा बोला वैसे ही करना, हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। वी आर मेकिंग अ शेल स्क्रिप्ट, ठीक है। सो हमारा जो पहला टास्क था टॉप 10 प्रोसेसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद में सेकंड जो टास्क था वो हमारा था टॉप 10 प्रोसेसेस विद मेमोरी यूसेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं हुआ तो भी हम लोग को कोई मतलब नहीं है, बस शो हो जाए तो विद मेमोरी यूसेज लिख देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में थर्ड टास्क हु इज द करंट लॉगिन, हमारा करंट लॉगिन कौन है वो भी हम लोगों ने बता दिया, ठीक है। तो चलो इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं सो दैट यू कैन सी एक्चुअली। सो रन करने के बाद में यू कैन सी द करंट, द थर्ड टास्क वी हैव मेंशन दैट इज करंट लॉगिन, एंड ये आपको आउटपुट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो अलग से कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चाहे तो किसी शेल स्क्रिप्ट में भी डाल सकते हैं, ओके। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, आपका है डिस्क यूसेज, ओके। पहले इसमें जो जो टास्क परफॉर्म किए गए हैं वो टास्क इसमें से ले लेते हैं। देन उसके बाद में फिर और आप लोग भी और कुछ सर्च कर सकते हैं इसके अंदर, क्लब कर सकते हैं, ठीक है। सो द डिस्क यूसेज यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ द DF कमांड, ठीक है। तो चलो एक बार देखते हैं सेपरेटली, एक बार देखते हैं कि DF कमांड कैसे यूज करते हैं, DF कमांड से आउटपुट कैसा आता है। तो ये रही आपकी DF कमांड, एंटर, ठीक है। तो इट विल शो यू ऑल दी आपका जो डिस्क है, जो डिस्क का यूसेज बताएगा कि पार्टीशन कौन कौन से है और उसमें कितना यूसेज है, यूज कितना है, अवेलेबल कितना है, परसेंटेज ऑफ यूज कितना है, और कहाँ पर माउंटेड है, रूट फोल्डर में, रूट में माउंटेड है या कहीं और माउंटेड है। सो ईच एंड एवरीथिंग आपको इन्फॉर्मेशन देता है आपका DF कमांड, ठीक है। और अब DF कमांड के साथ में आप जितना मतलब कि मिर्च मसाला लगाएंगे तो उतना आपको इन्फॉर्मेशन शो करेगा। लाइक यू कैन सी ऑल द मैनुअल एंट्रीज फॉर द DF कमांड, ठीक है। ऐसा ऐसा अगर आप देखते हैं ऐसे के DF कमांड, तो इट विल शो द इंफॉर्मेशन अबाउट द DF कमांड। सो देखो एक ऑप्शन है -A, -B, -H, -H, ओके। सो यू कैन सी ऑल दीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैनुअल कमांड, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग इसमें से निकाल के एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसको यूज में ला सकते हैं, ठीक है।
सो अब इसको हम लोग रन करते हैं। सॉरी, पहले यहाँ पर आते हैं हमारे। तो भाई हमको नंबर 4 का टास्क क्या करना है, डिस्क यूसेज। ओके, सो डिस्क यूसेज। उसके बाद में आपने डीएफ कमांड डाल दी। सिर्फ डीएफ कमांड करेंगे तो काम नहीं चलेगा, डीएफ के आगे हम लोगों ने -mh ऑप्शन यूज किया है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डीएफ कमांड एंड -mh कमांड, मतलब -mh पैरामीटर। तो स्टिल वी डोंट नो, कि हम लोग जाके इसको एक बार सर्च कर लेते हैं तो पता चल जाएगा। ठीक है, सो डीएफ कमांड से आपका ऐसा आउटपुट आता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, डीएफ -mh, ये आपको थोड़ा सा और अच्छे से मतलब थोड़ा कॉम्पैक्ट करके समराइज्ड आपको इन्फॉर्मेशन देता है -mh ऑप्शन। ठीक है, सो हम लोग चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। एक बार देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ डीएफ कमांड। यहाँ पर -mh ऑप्शन कहीं आपको नजर आ रहा है, -mh कहीं ना कहीं होगा इसमें तो नहीं है। -mh नजर नहीं आ रहा है, बट माइनस ऑप्शन -m एंड -h अलग अलग है क्या? ओके, चलो ट्राई कर देते हैं अलग अलग लेके। नो सर, वो डिफरेंट है लेकिन उसको साथ में कंबाइन करके तो ऐसा लिखते हैं, कंबाइन करके साथ में भी कर सकते हैं, बराबर। तो -m माइनस एम यूज एच, करता हूँ। मतलब जब दो कमांड यूज करते हैं तो। ओके, तो -m यूज करता हूँ मैं। -m से मुझे ये ऐसा आउटपुट आया है। -h से, अब -m -h के अलग अलग यूजेज है। यू कैन गो थ्रू द मैनुअल एंड यू कैन रीड दोस यूजेज। कुछ डिफरेंस ज्यादा दिख नहीं रहा है मुझे, बट है कुछ ना कुछ ऑप्शंस रहेंगे, कुछ ना कुछ तो। ठीक है, सो दिस इज माय टास्क नंबर 4 जो हम लोगों ने मेंशन किया। उसके बाद में आते हैं और टास्क, और क्या क्या इसके अंदर है। करंट शेल। ओके, करंट शेल क्या है, तो उसके लिए आपने सिंपली डॉलर शेल दिया, सो इट विल गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट आल्सो। देन होम डायरेक्टरी, देन ओएस टाइप, देन करंट पाथ सेटिंग, देन करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये सारों को मैं कॉपी करके डाल देता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट देता है। ठीक है, सो टास्क नंबर 4 करके डालू, मैं इसको इसको डालता हूँ। हाँ, ये टास्क नंबर हमारा 5 है। ठीक है, और ये है सिस्टम इंफॉर्मेशन। सिस्टम इंफॉर्मेशन, ओके, सिस्टम इंफॉर्मेशन ये सब डाल दिए। अब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, शेल स्क्रिप्ट को रन करता हूँ, सीधा आउटपुट। तो यहाँ से आया मेरा सिस्टम इंफॉर्मेशन, यहाँ से है। ठीक है, ध्यान से देखिए आउटपुट। सो द करंट शेल इज /bin/bash, इट्स अ current shell directory that it has been occupied by the system. Okay, from the system home directory, which is the home directory, this is /home/mukhtar. ठीक है, if you will not believe, then see this is the home directory में। ठीक है, और इस होम डायरेक्टरी का जो अगर देखना चाहिए आप प्रॉपर्टीज, तो /home कहाँ पर है, /home के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर मुख्तार फोल्डर है, मुख्तार फोल्डर में सारी चीजें हैं। तो ये हमारा होम डायरेक्टरी। देन ओएस टाइप, ओएस टाइप नहीं लाया रे भाई, ओएस टाइप नहीं दिया उसने। ओएस टाइप के लिए हो सकता है शायद दूसरा कोई वेरिएबल है। बहरहाल ओएस टाइप नहीं मिला। करंट पाथ सेटिंग ये है। ओके, आई थिंक यू नो अबाउट दी पाथ सेटिंग। जब आप लोग जावा के प्रोग्राम पहले करते थे, तो जावा के और दूसरे लैंग्वेज के, तो उसके अंदर आपको पाथ सेटिंग करना होती थी। जो आप लोग जावा का प्रोग्राम रन करते हैं, तो उसको जेवीएम मिलता नहीं है, तो जेवीएम देने के लिए उसको उसका पाथ देना पड़ता है कि भाई व्हेनेवर यू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, सो ये पाथ है, ये पाथ पे जाके जेवीएम पे जाने का, जेवीएम पे जाके अपने प्रोग्राम को रन करने का। तो पहले पहले ना पहले तो विंडोज में एक ऑप्शन होता था एनवायरमेंट वेरिएबल करके। उस एनवायरमेंट वेरिएबल में जाकर आपको उस पाथ को सेट करना होता है, तभी जाकर आपके जावा के प्रोग्राम रन होते थे। लेकिन आजकल सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर पहले से पाथ सेट आ रहे हैं। ठीक है, सो तो ये पाथ आपको शो करता है जो भी पाथ करंट में आपने सेट की है। ठीक है, तो वो पाथ एक्चुअली अभी दिखा रहा है। देन करंट वर्किंग डायरेक्टरी, राइट नाउ माय प्रोग्राम, जो मेरा test.sh प्रोग्राम है, माय test.sh प्रोग्राम इज करंटली लोकेटेड ऑन डेस्कटॉप। तो इसके लिए आपको अभी करंट जो डायरेक्टरी दिखा रहा है वो भी /home/mukhtar/desktop करके ये दिखा रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया हूँ। एग्जांपल का एक्चुअल में प्रोग्राम यही है,
but you can add more features, you can add more task in this particular shell script. ठीक है, तो इस shell script में आप लोग और भी task add कर सकते हैं. So I will write it like experiment number 2, experiment number 2. ठीक है, so this is experiment number 2 और इसके अंदर हमारा task number 1, task number 2, task number 3, 4 and this is 5. ठीक है, so इस तरीके से आपकी information 5 different task we have combined together in one shell script and we have executed it. Okay, so you can do other tasks also. ठीक है, other tasks like और भी कमांड है आपकी फॉर क्रिएटिंग ए फाइल, फॉर क्रिएटिंग फाइल, फॉर क्रिएटिंग डायरेक्टरीज, ओके, एंड फॉर लिस्टिंग आउट ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर. तो ये सारे टास्क को आप लोग एक शेल स्क्रिप्ट बना के उसमें कर सकते हैं. ठीक है, सो ये आपका था. और भी एक बार चेक कर लो कि इसमें क्या क्या है. करंट लॉग्ड इन यूजर एंड द लॉग नेम, ये इसमें इसने न्यू डाला था. so if you will query to internet that what is the command, आप लोग को अगर पता हो तो बताओ, what is the command used to find out the current login, who is currently logging. इसके लिए कमांड है भी, मेरे दिमाग से निकल रही है. अभी फिलहाल कौन लॉगिन है ये आपको कैसे पता चलेगा लिनक्स में. वो बराबर हु से पता चलेगा, तो मैं क्या सर्च कर रहा हूँ. और भी कमांड याद आ रही थी मुझे. वो है, यूजर्स है, W है. ठीक है, तो हु से आप लोगों ने पता किए. देन लॉग नेम, तो लॉग नेम का भी, अच्छा लॉग नेम मतलब लॉग्ड इन नेम ना सिंपली, तो नाम तो खैर आ ही जाता है. मुक्ता नाम आ रहा है, लॉग भी आ रहा है, तो चलो आ गया ना, हमारा काम तो हो गया. तो ये भी चलो हो गया हमारा काम. और उसके बाद में फिर करंट शेल, होम डायरेक्टरी, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप नहीं आया. ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड के लिए एक जरा कमांड सर्च करना आप लोग. एंड आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर कोड विद यू पीपल. ये वाला कोड मैं आप लोग से अपने शेयर करूंगा. ठीक है, और फिर उसके बाद में आप इसके अंदर कुछ ऐड करना, जो इसने बोला है वो इसमें आप लोग खुद भी ऐड कर सकते हो. ओएस वर्जन, रिलीज नंबर, कर्नल वर्जन, ये सारा फाइंड आउट करने की कोशिश करना. हाउ टू फाइंड द ओएस वर्जन. OS version, uname -a, वेरी गुड. तो uname -a करके ट्राई करते हैं. uname -a, it's Linux Mukhtar 5.4.0. okay, good, very good. So in this way you can add this information also at number 1. ठीक है, ये देखो ए पे ये बोला आपको डिस्प्ले OS वर्जन, देन उसके बाद में रिलीज नंबर और कर्नल वर्जन. आई थिंक कर्नल वर्जन भी आ रहा है इसके अंदर. ये इन्फॉर्मेशन 5.4.0 आपका आ रहा है, तो इसके अंदर आप लोग उसको डिस्प्ले कर सकते हैं. सो फर्स्ट के अंदर ये वाली कमांड डाल दिए, uname -a. ठीक है, -1 लेता है क्या. चलो, तो वो नहीं लेगा, -a ऑप्शन ये ले रहा है. ठीक है, आई वाज सर्चिंग फॉर मोर मैन uname. इसके अंदर ए मतलब -a में ऑल इन्फॉर्मेशन आ रही है, और अगर आप -s यूज करेंगे तो आपको सिर्फ कर्नल की इन्फॉर्मेशन आएगी. कर्नल रिलीज -r SRV. चलो ट्राई करते हैं. S, ओके, देन उसके बाद में R, ये आ गया आपका कर्नल, और उसके बाद में आ गया V. तो V से भी मिल गया आपको, कर्नल रिलीज भी मिल गया. ठीक है, सो यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. बस खाली आप सर्च करो, आपको मिल जाएंगी. वो कमांड उठा के अपनी शेल स्क्रिप्ट में डाल दो. ठीक है, so I think that it will okay and it will work for our second experiment. So hope you will do it at you will do this particular second program at your home. So what I will do, I will copy the things. So here
मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको सबलाइन में डाल देता हूँ हमारे test.sh में, ठीक है। इसको आप लोग भी कर सकते हैं। ये आपका टास्क नंबर 1 बन जाएगा, तो 1 नहीं ए आएगा, ठीक है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला आपका टास्क, फर्स्ट वाला टास्क, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो इसको आपको मॉडिफाई करना है। अभी मैं इसके अंदर एक काम करूंगा, मैं एक काम करूँगा, इसको हटा देता हूँ। जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो चीज़ आप लोग इसमें डालना, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके आप लोग को कहाँ दूँ, मैं आप लोग को बोलो अभी। कैन यू कॉपी द थिंग्स ओवर हियर? मैंने आप लोग को चैट बॉक्स पे डाल दिया हूँ, और बाद में फिर आप लोग को मैं वो भी करूँगा ना, क्लासरूम में डाल दूंगा। क्लासरूम में एक इसके इसका मतलब प्रैक्टिकल का मटेरियल बोल के मैं डाल दूंगा, ठीक है। सो अभी देखो टाइम भी हो गया, ये टाइम करते करते टाइम भी हो गया, ठीक है। स्टॉप करते हैं।